ایک مرد کا خواب ہوتا ہے کہ اسے بالکل پرفیکٹ بیوی ملے۔ عورت یہ چاہتی ہے کہ اسے سر سے لے کر پاؤں تک مکمل مرد کا ساتھ مل جائے، جبکہ ایسا ہونا مشکل بھی ہوتا ہے اور بالکل نہیں ہوتا۔ وہ دونوں یہ نہیں سمجھتے کہ اللہ تعالیٰ نے ان دونوں کو ایک دوسرے کو مکمل کرنے کے لیے ایک دوسرے سے جوڑ دیا ہے۔ جب یہ دونوں ایک دوسرے سے منسلک ہو جاتے ہیں تو ان کے دلوں کے ساتھ ساتھ ان کے ذہن بھی ایک دوسرے سے منسلک ہو جانے سے دونوں مکمل ہو جاتے ہیں۔ پھر تیز ہواؤں میں دونوں ایک دوسرے کو تھام کر چلنے لگتے ہیں۔ وہ مکمل مرد کی تلاش میں تھی۔ تلاش کرتے کرتے بہت دور جا نکلی، جہاں اب دور دور تک کوئی دکھائی نہیں دیتا تھا۔ اسے اپنا وجود اکیلا کھڑا نظر آنے لگا۔ مکمل اور بھرپور کی تلاش میں تھوڑا بھی اسے نظر نہیں آ رہا تھا۔ مارے گھبراہٹ کے اس کی پیشانی پسینے سے تر ہو گئی۔ شام کو وہ لوگ آ رہے ہیں، تم بس تیار رہنا۔ اس بار بھی اگر مجھے آنے والے لوگ پسند نہ آئے تو وہ اسلامہ نگر والا رشتہ دیکھیں گے۔ فی الحال تو ان لوگوں کو دیکھ لیں۔ انسا بیگم صحن کے بیچوں بیچ بیٹھی پھل کاٹتے ہوئے دامن سے گوئی ہوئی۔ دامن نے بھنویاں اچکائی اور سیب کی ایک پھنک اٹھا کر کھانے لگی۔ لیکن امی، آپ کو معلوم ہے میرا آخری سیمسٹر ابھی پورا پڑا ہوا ہے۔ میرے پاس شادی کے لیے بہت وقت ہے۔ مجھے بار بار یہ فضول قسم کی پریڈ نہ کروایا کریں۔ زلفوں کو ماتھے سے ہٹاتی ہوئی دامن ہمیشہ کی طرح لال ابالی انداز میں شادی سے انکاری تھی۔ ہاں، وہ سب تو ٹھیک ہے۔ ایک بار کوئی لڑکا پسند آ جائے، پھر ان لوگوں سے تمہارا سیمسٹر ختم ہونے تک کا وقت لے لیں گے۔ امی نے دادی کی طرف دیکھتے ہوئے دامن سے بات کی تھی۔ یہی تو میں کہہ رہی ہوں تم سب کو کہ لڑکا پسند تو آئے، پھر سال یا 6 مہینے کا وقت لے لینا۔ دادی نے ہاں میں ہاں ملاتے ہوئے دوسرا سیب انیسہ بیگم کے ہاتھ میں تھمایا اور انیسہ بیگم اس کو چھیلنے لگی۔ آج پھر سر نے تمہاری بہت تعریف کی ہے، عابد نے دور سے آتی دامن کو خوش دلی سے کہا۔ اچھا، کیا کہہ رہے تھے؟ دامن نے دہنے کندھے پہ بیگ کی بیلٹ چڑھاتے ہوئے عابد سے پوچھا۔ یہی کہ دامن کی اسائنمنٹ سب سے اچھی ہے، عابد نے بات گھمائے بغیر اسے مختصر بتایا۔ عاشی بھی پاس کھڑی مسکرا رہی تھی۔ عاشی دونوں کی بیسٹ فرینڈ تھی، دونوں کی گفتگو سن کے مسکرا دیتی۔ ہاں، مجھے پہلے ہی معلوم تھا میری اسائنمنٹ سب سے اچھی ہوگی۔ ویسے بھی میں ہی نمبر 1 ہوں پوری کلاس میں۔ تبکر آمیز لہجے میں بولتی دامن سیدھی اپنی کلاس کی جامن چل دی۔ عاشی نے ایک نظر عابد کو دیکھا اور جاتی ہوئی دامن کو دیکھ کر گوئی، عابد تمہیں کتنی بار کہا اس کے منہ نہ لگا کر، ہر وقت تکبر اس کی ناک پر موجود رہتا ہے۔ اچھا جی، تم بھی تو اس کی بیسٹ فرینڈ ہو نا، اس کی مخالفت کیوں کر رہی ہو؟ کیونکہ مجھے تمہاری عزت زیادہ عزیز ہے۔ عاشی نے تیزی سے بات کرتے کرتے رک کر باقی بات مکمل کی۔ عاشی تم بھی نا، ایک تو تم لڑکیوں کی فطرت مجھے سمجھ نہیں آتی۔ خیر چلو کچھ کھاتے ہیں، بہت بھوک لگی ہے۔ عابد نے عاشی کو کینٹین چلنے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا۔ جلدی کرو، یہ بسکٹ الگ ٹرے میں سجاؤ اور پینٹر والی ٹرے الگ رکھنا، اور ہاں، چائے والی ٹرے دامن ہی مہمانوں کے سامنے لے کر آئے گی، باقی سب میں خود ڈرائنگ روم میں رکھوا دیتی ہوں۔ انیسہ بیگم نے دامن اور چھوٹی ندا کو ہدایت کرتے ہوئے اپنا رخ ڈرائنگ روم کی طرف کر لیا۔ دادی پہلے سے وہاں مہمانوں کے سامنے بیٹھی تھی۔ آصف صاحب بھی موقع پہ تشریف لے آئے تھے۔ بھائی، ہماری بیٹی لاکھوں میں ایک ہے، اعلیٰ تعلیم یافتہ، نہایت مہذب بچی ہے۔ میں نے ان کی تربیت بہت نازوں سے کی ہے۔ آصف صاحب نے اپنی بیٹی دامن کے لیے تعریفوں کے پلے باندھے جو کسی حد تک سچائی پر مبنی تھے۔ ماشاءاللہ ماشاءاللہ، ہم میں بھی پڑھی لکھی بہو کی تلاش ہے۔ ہم ایسی مہذب اور پیاری بچی کو اپنے گھر کی بہو بنانا چاہتے ہیں۔ آپ بچی کو تو بلائیں، مہمان خاتون نے مسکراتے ہوئے کہا۔ تو اس کے ساتھ آئی 2 لڑکیوں نے بھی دروازے کی طرف گھورنا شروع کر دیا۔ ہاں ہاں، لیجیے، آ گئی دامن۔ انسا بیگم دروازے کی اوٹ سے دامن کو اندر لے آئی۔ بہت پیاری بچی ہے۔ خاتون اور لڑکیوں کے چہرے دامن کو دیکھ کر چمک اٹھے۔ آپ جب چاہیں ہمارے گھر آئیں اور ہمارے احسن کو دیکھ سکتی ہیں۔ مہمان خاتون نے دامن کے سر پر ہاتھ پھیرتے ہوئے انسا بیگم کو اپنے گھر آنے کی دعوت دی، جس کا مطلب یہ تھا کہ دامن ان کو پسند آ چکی تھی۔ آصف صاحب، میں بتا رہی ہوں آپ کو، اگر اس بار بھی لڑکا مجھے نہ بھایا تو ہماری طرف سے یہ رشتہ بھی ریجیکٹ ہی سمجھے۔
हंसा बेगम के मिजाज काफ़ी ऊंचाई पर मालूम हो रहे थे और इस बात को आसिफ साहब भी अच्छी तरह जानते थे। बेगम की हाँ में हाँ मिलाते हुए भी अपनी परी के लिए अर्श से आए हुए शहजादों की तलाश में थे, जिसके पास अपना बिजनेस भी हो, कद काट रूप सीरत के साथ साथ इनके तमाम मुतलबात पर पूरा उतरता हो। ऐसा लड़का इनको अभी तक नहीं मिल पाया था। कुछ राय तो दामन की अपनी भी थी। लड़के का रंग गोरा और फैमिली छोटी होनी चाहिए, ये दामन ने अम्मी साहबा को पहले से बता रखा था। वो लोग एहसन को देख आए थे। इस लड़कों में हज़ारों ऐब तो अंसा बेगम ने रास्ते में निकाल दिए थे। लड़के के गाल चिचके हुए हैं, बिजनेस भी कुछ खास नहीं था। हमारा फजूल में वक्त ज़ाय करवा दिया इस कनीज़ बीबी ने। कोई ढंग का रिश्ता नहीं इसके पास। कितनी बार कहा है कि लड़का खूबसूरत तो कम से कम हमारी दामन के साथ मैच तो करे। दादी ने तलमलाते हुए गाड़ी से उतरते हुए बोला, तुम कब आए? सामने बैठे आबिद को देखकर दामन यकदम चौंकते हुए बोली, मैं तो कब का यहाँ बैठा हूँ। तुम असाइनमेंट में ही इतनी बिजी थी कि मेरे आने की खबर ना हुई। आबिद ने संजीदगी से कहा और किन अखियों से उसे देखने लगे। वैसे मुझे तुमसे कुछ बात करनी थी। आबिद ने दोबारा दामन को अपनी तरफ मुतवज्जह करते हुए कहा, क्या बात है? दामन ने नज़रें उठाए बगैर अपनी असाइनमेंट के वर्क उल्टाते हुए लापरवाही से पूछा, मेरे घर वाले मेरी शादी करना चाहते हैं। आबिद ने तहमत बांधते हुए, तो मैं क्या करूं? दामन के लहजे में लापरवाही के साथ रूखापन भी शामिल हुआ। तो ये कि मैंने लड़की ढूंढ रखी है, वो अटक अटक के बोल रहा था। तुम ये सब मुझे क्यों बता रहे हो? इस बार दामन ने असाइनमेंट को बंद करते हुए उससे कहा, इसलिए कि वो लड़की मेरे सामने है। आबिद ने कोशिश और हिम्मत को मिलाकर उसे 2 टका बात की, तुम्हारा दिमाग तो ख़राब नहीं हो गया? तुम्हें पता है मुझे कैसा लड़का पसंद है? वो अपनी जगह से उठ खड़ी हुई। सुनो मिस्टर, आशी ने तुम्हें बताया भी था कि मेरे घर वाले भी लड़का ढूंढ रहे हैं, लेकिन हमारे मियार का अभी तक नहीं मिला। तुम तो हरगिज़ नहीं हमारे मियार पे पूरा नहीं उतरे। वो एक सांस में बोल रही थी, जबकि आबिद भी उठकर इसके सामने खड़ा होगा। दामन, शायद तुम्हें पता नहीं, स्टडी से फ्री होकर मैं अपने बाबा का बिजनेस संभालने वाला हूँ और एक ही बहन है जो छोटी है, अभी पढ़ रही है। मेरी दुल्हन को मेरे घर वाले बहुत प्यार से रखेंगे, तुम बहुत खुश रहोगी मेरे घर में, और सबसे बड़ी बात यह कि मेरी तरफ से बेशुमार मोहब्बत मिलेगी। आबिद उसे उंगली लहरा कर बताता हुआ पीछे की जानिब चलता गया और बात मुकम्मल करते मुड़ा और यूनिवर्सिटी की सीढ़ियाँ चढ़ गया। वो मज़ीद दामन की कोई भी बात सुनना नहीं चाहता था, इसलिए वो उसे अपनी बात सुनाता हुआ वहाँ से गायब हो गया। दामन उसे क्लास की तरफ जाता हुआ देखती रही। आज कुछ मेहमान आ रहे हैं अम्मा। हाँ तो ठीक है, आने दो, देखते हैं कितने पानी में है। हमारे दामन के जोड़ का हाँ हुआ तो हाँ करेंगे, वरना हमेशा की तरह इनको भी चलता करेंगे। दादी ने चादर का पल्लू सर पे टिकाते हुए फखरे अंदाज में कहा, लेकिन अम्मा इस बार लड़का भी साथ आ रहा है। अरे अच्छा है ना, लड़का यहीं देख लेंगे, इनके घर जाने की जहमत नहीं उठानी पड़ेगी। वो लोग शाम को 6 बजे आ रहे हैं, तैयारी कर लेना। अम्मी ने सब्जी काटते हुए दामन को बताया। अम्मी आप भी ना, मुझे बहुत कोफत होती है ये रोज़ रोज़ का ड्रामा। उफ, मैं तंग आ गई हूँ। दामन ने कसमताते हुए प्याज का तड़का लगाते हुए अम्मी की जानिब देखा। अब जाओ शाबाश, तैयारी करो। उसे जाने का कहकर अम्मी खुद चूल्हे के सामने खड़ी होगी। आज अंसा बेगम उसे किसी भी काम में नहीं लगाना चाहती थी। जिस दिन भी रिश्ते के लिए किसी ने आना हो तो इस दिन दामन को मुकम्मल रेस्ट करवाई जाती, ताकि इसके चेहरे पर किसी की थकन का एहसास ना हो। चेहरे पे फिशल और करीमे वो खुद लगा लेती, जिससे चेहरा शदाब और हशाश बशाश दिखाई देता। वो लोग आ गए, जल्दी से ये ट्रे उठाओ, ड्राइंग रूम में ले जाओ। अम्मी का आर्डर आया। छोटी निदा ने शरारती अंदाज से दामन की तरफ देखते हुए कहा। दामन ने तो सोचा भी नहीं था कि आज उसे देखने के लिए आबिद की फैमिली आ गई। आबिद को भी साथ बैठा देखकर दामन ने तेवरी चढ़ाई। हद होती है, वैसे ये बंदा तो घर तक पहुंच गया। वो धीमी आवाज़ में बड़बड़ाई। आबिद शरारती अंदाज से इसकी तरफ देख रहा था, जैसे कह रहा हो, देख लो दामन, मोहब्बत की है, कोई टाइम पास नहीं किया। तुम्हें इज्जत से रुखसत करने आया हूँ, इज्जत से लेने आया हूँ, वादा पूरा किया मैंने। लेकिन दामन के घर वालों का म्यार इनकी हैसियत से भी कहीं ज़्यादा बढ़कर था। लड़के का रंग साफ नहीं। आसिफ साहब मेहमानों के जानने के बाद अंसा बेगम ने अपना ख्याल ज़ाहिर किया। हाँ, लेकिन मुझे लड़का और इसकी फैमिली तो ठीक लगी है, कारोबार भी ठीक है। सबसे अच्छी बात यह है कि लड़का हमारी दामन की यूनिवर्सिटी में पढ़ता है, दोनों एक दूसरे को जानते हैं। आसिफ साहब को आने वाले रिश्ते में बाकी सब खूबियाँ नजर है, लेकिन दामन का रंग गोरा होने की वजह से आबिद के साथ इसका कोई जोड़ नहीं लग रहा था। मैंने पहले उसे कहा था इसका और मेरा कोई मैच नहीं है, लेकिन ये लड़का अपनी मनवा के क्लासरूम में चला गया। चलो कोई बात नहीं, हम तुम्हारे लिए बहुत अच्छा रिश्ता ढूंढेंगे। चंद लम्हों की खामोशी के बाद
अंसा बेगम ने दमन को तसल्ली देते हुए कहा, मुझे तुमसे ये उम्मीद नहीं थी, मेरे पास किस चीज़ की कमी है? तुम्हारे घर से कोई जवाब नहीं आया। मुझे आशी ने बताया कि तुम लोगों को मैं पसंद नहीं है, मतलब मुझे साफ इनकारी महसूस हो रहा है। अरे इज्जत से अपनी अम्मी जान को लेकर तुम्हारे घर रिश्ता लेकर गया था। वो धीमे लहजे में बेबसी के आलम में बो रहा था। देखो आबिद, मैंने पहले भी कहा था हमारे म्यार पे तुम पूरा नहीं उतरोगे। दामन के लहजे में गरूर साफ दिखाई दे रहा था। क्या म्यार है आप लोगों का? सब कुछ तो भला चंगा है मेरे पास। आबिद ने इस्ताफिया अंदाज में इसकी तरफ देखते हुए सवाल किया। बस तुम नहीं समझोगे आबिद, मेरा रास्ता छोड़ो, मेरी क्लास स्टार्ट होने वाली है। जाते जाते एक बात सुनती जाओ, जिस म्यार की तुम बात कर रहे हो तुम्हें कहीं नहीं मिलेगा। अगर मिल भी गया तो मुझ जैसा मोहब्बत करने वाला नहीं मिलेगा। आबिद ने जाती हुई दामन को ऊंची आवाज़ में कहा और उसे जाते हुए देखने लगा। वो इसकी पूरी बात सुन चुकी थी, लेकिन अनसुनी करके अपनी क्लास की तरफ बढ़ गई। 2 कदम दूर खड़ी आशी दोनों को देख रही थी। तुम जैसे काबिल और अच्छे लड़के को ठुकराने वाला नहायत ही बेवकूफ़ होगा। तुम्हारी तो फैमिली बैकग्राउंड भी इतना अच्छा और मजबूत है, ना जाने क्यों इन लोगों ने तुम्हारे साथ ऐसा किया। तुम ऐसे लोगों को डिवोर्स ही नहीं करते आबिद। आशी ने आबिद के कंधे पे हाथ रख के बोला, लो दमन, आज तुम खाना मेरी तबीयत ठीक नहीं। अंसा बेगम ने दामन को खाना बनाने का कहा और खुद सैन में बिछी चारपाई पर आकर बैठ गई। कुकिंग करना इसकी हॉबी थी। वो बाखुशी आज रात का खाना बनाने में मसरूफ़ हो गई। एक तरफ इसने आलू छील कर रख ली और दूसरी तरफ गोश्त भूनने लगी। अम्मी ने गोश्त का मिसाला पहले से तैयार कर दिया था। आलू गोश्त के साथ मैं खुद चपातियाँ बना देती हूँ। इसने किचन की खिड़की से अम्मी को आवाज़ लगाई, हाँ हाँ बना दो, मुझे तो बहुत चक्कर आ रहे हैं आज। अम्मी ने उसे चपातियाँ बनाने की इजाज़त देते हुए साथ ही अपनी तबीयत की नासाजी भी बता दी। गोश्त भून जाने के बाद वो इसमें आलू डाल चुकी थी। इसका शिफॉन का दुपट्टा बार बार उसे तंग कर रहा था। कभी कंधे से गिर जाता तो कभी पूरा इसके वजूद पर बिखर जाता। रोटियां बनाने के लिए इसने दूसरे चूल्हे में आग लगा दी। अभी इसने इस पे तवा नहीं रखा था। तवा रखने से पहले इसने आलू गोश्त के सालन में चम्मच हिलाने की गर्ज से हाथ बढ़ाए तो अचानक इसके दुपट्टे को आग ने छू लिया। गर्मी में शिफॉन के दुपट्टे को आग ने फौरन ही अपनी लपेट में ले लिया। अम्मी अम्मी, आग लग गई, वो चीख रही थी। आग ने सिर्फ चंद लम्हात लिए और इसके बदन पे पहने हुए लॉन के सूट तक पहुंच गई। आग लगने के इन लम्हात के दौरान अम्मी और दादी सैन से दमन के चीखे पुकार सुन के भागती हुई आ गई। दोनों औरतें ख्वासन भाग तो गई, उन्होंने भी शोर मचा दिया। निद्दा भी घबरा के चीखने लगी कि मोहल्ले के लोग आ पहुंचे। दादी ने कशमकश में दामन पे पानी के गिलास भर भर के फेंकने शुरू कर दी। इस पे पानी ना फेंको बहन, कपड़ा फेंको कपड़ा। औरतों में से किसी ने ऊंची आवाज़ में तेज़ी से सलाह दी। लिहाजा सैन में बड़ी चारपाई के ऊपर से कपड़ा उतार के दामन पे किसी ने फेंक दिया। 2-3 चादरें छोटी बहन निद्दा अंदर से उठा लाई। दामन पे चादरें फेंककर आग पर काबू पा लिया, लेकिन दामन का काफ़ी हद तक जल चुकी थी। हरारत की वजह से दामन बेहोश हो चुकी थी। मज़ीद कितने दिन लगेंगे डॉक्टर साहब? आसिफ साहब ने अस्पताल में डॉक्टर से दवाई का नुस्खा पूछते हुए कहा, कल हम इनको डिस्चार्ज कर देंगे, आप उन्हें घर ले जा सकते हैं। आसिफ साहब बेबसी से डॉक्टर को जाते हुए देख रहे थे। उन्होंने कुछ रोज़ दामन को अस्पताल में रखा। इसके जख्मों को भरने में काफ़ी दिन लग गए थे। आग की शिद्दत ने दामन का आधा बदन चेहरे समेत लपेट में ले लिया था। दामन ने जब से अपने वजूद और चेहरे को गौर से देखा तब से इसको चुप की बीमारी लाहक होगी। वो खामोशी की मोहरत बनी बैठी थी। आज वो लोग दामन को घर लेकर आ गए, वो भी कोई गारंटी नहीं है। चेहरे पहले जैसा शदाब व हसीन नजर आए। दामन की अयादत के लिए आई हुई 2 औरतों में से एक ने अयादत के बाद घर से निकलते हुए कहा, लेकिन मैंने तो सुना ये लोग दामन का रिश्ता देख रहे हैं, अब कौन करेगा इस डरावनी लड़की से शादी? दूसरी औरत की बात अंदर दाखिल होते हुए आसिफ साहब की स्मातों तक नजर आ गए, लेकिन उन्होंने नज़रअंदाज कर दिया। दामन कैसी? आसिफ साहब ने अंदर दाखिल होते बेगम से बेटी का हाल पूछा। कैसी हो सकती है? जहरी तो मसक हो चुकी है, बातनी भी टूट चुकी है, हर वक्त खामोशी से बैठी रहती है। हाँ वही जिसका रिश्ता हमारे यहाँ आया था। आसिफ साहब को जल्दी याद आ गया। हाँ वही, इससे कोई काम पड़ गया। दामन को शायद यूनिवर्सिटी से छुट्टियाँ लेनी थी। मेरे इशारे पर दामन ने उसे कॉल की तो इस लड़के ने बताया आज वो मसरूफ़, आज इसकी बारात है। दामन के पूछने पर इस लड़के ने बताया कि बहुत अच्छे ख़ानदान के शरीफ लोग हैं। लड़की दामन की क्लास फेलो आशी बहुत खूबसूरत पढ़ी लिखी लड़की भी है। आशी ने खुद आबिद को प्रपोज किया। अंसा बेगम ने सारी तफसील दामन के अब्बू को बता दी, जो दामन ने खुद माँ को बताई थी। बस बेगम, कुदरत भी कैसा खेल खेलती है इंसान के साथ। इंसान वाकई खसारे में, लेकिन जब तक हमें समझ आती है तब तक वक्त निकल जाता है। मैं अपनी बच्ची को इस तरह घुट घुट के जीते नहीं देख सकती। दामन के अब्बू, आप कोई रिश्ता देखे ना, हम इसकी शादी कर देंगे तो इसकी दिली कैफियत कुछ बदलेगी, शायद फिर से ज़िंदगी की तरफ लौट आए। हाँ देखता हूँ किसी गरीब घर का लड़का, कोई छोटी मोटी नौकरी करता हो, हमारी दामन को बस कबूल कर ले। अब्बू ने एक लंबी सांस लेते हुए कहा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक कर दें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। शुक्रिया।